کوئی آپ بات کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم نے پروپوز کیا ہے نیا پورا مسودہ، نوید بھائی نے جہاں پوری تفصیل سے چیزیں بتائیں، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں آرٹیکل 140A کے تحت انہیں کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے جا رہے، تو ہم نے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہم نے پروپوز کیا ہے اس کے فرسٹ شیڈول پر جب آپ جائیں گے، فرسٹ شیڈول میں تمام ان اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 30 اور 33 یہ ادارے ہیں اور 50 وہ ادارے ہیں جن کا براہ راست عوام سے تعلق ہے۔ ان میں موٹے موٹے میں آپ کو ذرا بتا بھی دیتا ہوں: سول ڈیفنس، ایگریکلچر، لائیو اسٹاک، آن فارم واٹر مینجمنٹ، سوائل کنزرویشن، سوائل فرٹیلیٹی، فشریز، فارسٹ، لیبر، سوشل ویلفیئر، اسپورٹس اینڈ کلچر، کوآپریٹو، بوائز اسکول، گرلز اسکول، ٹیکنیکل ایجوکیشن، کالجز، اسپورٹس، اسپیشل ایجوکیشن، اکاؤنٹس، بیسک اینڈ رورل ہیلتھ، چائلڈ اینڈ ویمن ہیلتھ، پاپولیشن ویلفیئر، ہاسپٹلز، انوائرنمنٹ، ایگزیکٹو مجسٹری، لینڈ ریونیو، اسٹیٹ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ہاؤسنگ، اربن اینڈ فزیکل پلاننگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، ڈسٹرکٹ روڈز اینڈ بلڈنگز، ٹرانسپورٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، سندھ کچی آبادیز۔ اسی طریقے سے کوآرڈینیشن کا محکمہ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، کمیونٹی آرگنائزیشن ہے، رجسٹریشن، انٹرپرائز اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن ہے، لیگل ایڈ۔ یہ تقریباً کوئی 50 کے قریب یہ وہ ادارے ہیں جن کا براہ راست اوپر میٹروپولیٹن کارپوریشن سے لے کے نیچے یو سی تک ان کا اختیار ہے۔ تو ان محکموں کو ہم نے جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے میٹروپولیٹن تک، پھر نیچے کونسلز تک، پھر یو سی تک۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کے پارٹ سی میں جائیں گے، پارٹ 1 میں جب آپ جائیں گے تو یہاں ٹیکسز کا پورا ایک ہم نے شیڈول دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ شیڈول۔ یہ تقریباً 27 ٹیکسز ہیں، پھر میونسپل کونسل کے ٹیکسز ہیں۔ یہ ٹیکسز بھی ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، کونسلز میں، ٹی ایم ایز میں، اور پھر نیچے یو سیز کو بھی ہم نے ٹیکس کلیکشن کے اختیارات دیے ہیں کہ یو سیز جو براہ راست عوام کے دروازے تک جن کی اپروچ ہوتی ہے، محلے گلی محلے گاؤں دیہات کا ہر فرد یو سی چیئرمین کے پاس، کونسلرز کے پاس جا رہا ہوتا ہے اپنے مسائل کے لیے، لیکن ان کے پاس سوائے تنخواہوں کے فنڈز آنے کے علاوہ کوئی فنڈز نہیں ہوتا، وہ ہر کام کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ان کو اختیار دیا جائے گا تو پھر وہ عوام کے کام کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، لوکل گورنمنٹ فائننس کمیشن جو سندھ حکومت نے بنایا، کبھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ آپ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ 12 سالوں سے 2013 کے بعد سے جب سے یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، ان 7-8 سالوں میں ہر سال اپوزیشن کہتی رہی کہ پروونشل فائننس کمیشن کے اوپر آپ عمل کریں، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے پروونشل فائننس کمیشن ایک آزاد خود مختار ایک کمیشن اس میں تشکیل دیا گیا ہے جو ایک فارمولے کے تحت، جس طرح فیڈرل فائننس کمیشن ہے، نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ پروونشل فائننس کمیشن بلدیاتی اداروں کو پیسے لے کر دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے فارمولہ بنا دیا ہے اس کے اندر کہ سندھ حکومت کس طرح پروونشل فائننس کمیشن کا حصہ دے گی تاکہ وہ پروونشل فائننس کمیشن تمام بلدیاتی ادارے، چاہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں یا نیچے کونسلز ہوں یا ٹی ایم ایز ہوں یا یو سیز ہوں، ان کو آبادی کی بنیاد پر ان کو فنڈز ٹرانسفر کرے۔ اسی طریقے سے اس میں ہم نے لوکل گورنمنٹ کمیشن اس ایکٹ کے اندر ہم نے نہیں رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں رکھا کہ وہ ایک ایسی تلوار ہے جس کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک کرپشن کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
लोकल गवर्नमेंट कमीशन के लोग इंटरनल ऑडिट के नाम पर, इंक्वायरीज के नाम पर, इन्वेस्टिगेशंस के नाम पर, तहकीकात के नाम पर इन बल्दियाती इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर वहाँ से करप्शन चलता है। हमने उसका खात्मा करके, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो इदारे हैं वो उनके मातहत हैं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको ऑडिट करे, उनकी इंक्वायरियां करे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे और किसी को भेजे। उनके पास एंटी करप्शन का इदारा है, वो उनके मातहत है, उनका अंदरूनी इदारा है। इसी तरीके से हमने इस लोकल गवर्नमेंट कमीशन में एक चैप्टर रखा है इंटरनल कंट्रोल का। वो चैप्टर जो है वो उसके तमाम सेक्शन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इख्तियार देते हैं कि वो ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इदारे, नीचे टीएमएस के इदारे, काउंसिल्स और यूनियन काउंसिल जिन्हें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो उनका ऑडिट भी करे, उनकी इंक्वायरीज भी करे और उनकी रिपोर्ट ऊपर मेयर को या म्यूनिसिपल कमिश्नर को या काउंसिल को प्रोवाइड करे, ताकि फिर वहाँ से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये चंद मोटी मोटी बातें थीं जो मुझे करनी थी, बाकी तमाम चीज़ें कंवर नवेद भाई आपको ब्रीफ कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल निज़ाम, जिसमें यूसी चेयरमैन पर भी करप्शन के इल्जाम हो, तो जो डीएमसी के बड़े कर्ता धर्ता होते हैं उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम हो, माजी के तजुर्बात बताते हैं कि जब पावरफुल मेयर था तो शहर के ग्राउंड पर कब्जे हुए, पार्क पर कब्जे हुए, चाइना कटिंग हुई, मुख्तलिफ किस्म के मामला हुए। बेतहाशा जब पावर मिलते हैं तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे लोग जो है उसका नाजायज इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए ये सिस्टम कैसे होगा? देखिए ये सिस्टम जो होते हैं, जमहूरियत की खूबसूरती यही है। देखिए इस वक्त नैब में मुकदमा चल रहे हैं, वफाकी हुकूमत के भी चल रहे हैं, सूबाई हुकूमतों के भी चल रहे हैं, लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि उसका एहतसाब, उसका मुहासबा आवाम करते हैं। दूसरा यह है कि जो तमाम जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा उस पर भी, जिस तरह सूबाई हुकूमत जो होती है उसके ऊपर जो नैब का इदारा है वो वफाकी हुकूमत में होने वाली बेकायदगियों को, माली बेकायदगियों को देखता है, सूबाई हुकूमत की माली बेकायदगियों को देखता है, वो लोकल गवर्नमेंट की माली बेकायदगियों को भी देखेगा। फिर उसके साथ साथ जो सूबाई एंटी करप्शन है वो जब सूबाई को देखता है, इसी तरह से वो लोकल गवर्नमेंट को देखेगा। फिर तीसरा इसका अपना सिस्टम है, इसलिए कि वफाक के मामलात को देखने के लिए सिर्फ नैब अकेला है, सूबाई मामलात को देखने के लिए दो महकमे हैं, नैब है और एंटी करप्शन है। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के मामलात को देखने के लिए तीन सिस्टम होंगे, नैब भी देखेगा, एंटी करप्शन भी देखेगा और ये इसका अपना जो लोकल सिस्टम है वो भी देखेगा। और चौथा सब चीज़ें हैं वो आवाम देखेगी कि आवाम जब अगली दफ़ा आएंगे तो फिर उन्हें आवाम से ही वोट लेना है। लेकिन जो सरकारी जो अफसरान होते हैं वो किसी से वोट नहीं लेते, जिस तरह इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं वो तो। अच्छा, इसमें एक सेकंड मैं इनकी बात का एक जवाब और दे दूं कि देखें, ये कोई जवाज़ नहीं है किसी को इख्तियारात न देने का कि जिसे बेबहा इख्तियारात दिए जाते हैं वहाँ पर करप्शन हो जाती है, अकरबा परवरी हो जाती है, इख्तियार का बेदरग इस्तेमाल होता है। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान की जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं वो गले तक करप्शन में धंसी रही हैं पिछले 30 सालों के अंदर। फिर ये 18वीं तरमीम के ज़रिए तमाम वफाकी इख्तियारात सूबों को नहीं मिलने चाहिए थे। क्या 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मिले, वो इख्तियारात मिलने के बाद सूबाई हुकूमतों में करप्शन, अकरबा परवरी, लूट मार कम हुई है या बढ़ी है? तो क्या फिर हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास आ गए और इनमें करप्शन कई सौ गुना बढ़ गई,
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वाटर कमीशन की रिपोर्टें, सब रिपोर्टें मौजूद हैं कि सिंध के अंदर कितने बड़े पैमाने पर 18वीं तरमीम के आने के बाद करप्शन हुई। तो क्या फिर 18वीं तरमीम को ये जवाब बना के रोल बैक कर दिया जाए? सिंध हुकूमत के पास आए हुए तमाम इख्तियार वापस फिर वफाकी हुकूमत को चले जाएं? अच्छा ये बता दें कि इस वफाकी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, वो यकसा बल्दियाती निज़ाम मुल्क भर में लाने के लिए कोशां है, ठीक है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो बल्दियाती एक्ट है उसमें वो तरमीम करने जा रही है, उसको मज़ीद बेहतर करेगी और मज़ीद इख्तियारात की भी बातें कर रही है कि वो मेयर को और बाकी सिस्टम को जो इख्तियार देगी। तो क्या आपने सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया है और क्या वफाकी हुकूमत जो यकसा जो है ना वो निज़ाम लाना चाह रही है उस हवाले से भी, चूँकि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो किस तरह आपने एक मुनफरिद और अलग से आपने एक सिस्टम? देखिए, जमहूरियत जो होती है वो मशावरत के लिए होती है। अब ये हमारा कानून है, ये असेंबली में जमा हो गया है, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे भी हैं, PTI के नुमाइंदे भी हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं। इस पर बहस होगी और उसके बाद इन्हीं बहस व तमीज़ की उसमें चीज़ें बेहतर होती हैं। हमने ये जमा कराया ही इसलिए है कि सूबाई हुकूमत भी देख ले और अगर उसके पास कुछ और अच्छी तजवीज़ें वो इसमें शामिल कर ले या इसकी तजवीज़ें शामिल कर लें, फिर असेंबली ही मिलकर एक कानून पास करे। ये तो असेंबली में जमा करा रहे हैं ना, मैं कह दूं उस पर। देखें जो सूबाई हर कोई वही काम करता है जो वो कर सकता है। हम जो कर सकते थे वो ये है कि हमने इस निचोड़ के ऊपर जो हम गुज़िश्ता कोई लगभग 35 साल से लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, हमारे पास जो तजर्बा था वो हमने इस किताब में जमा कर दिया है। फिर ये तो मशावरत है, जमहूरियत कहते ही इसे हैं कि इसी में मशावरत होती रहेगी और इंशाल्लाह इसी में बेहतरी का रास्ता निकलेगा। इस पर अलग से हम 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके लिए हम अलहदा ब्रीफिंग रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे। ये बोलना आज डिस्कस नहीं करें इसको। देखें, जो लोग पाकिस्तानी उनकी सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर आके अगर उन पर मुकदमात होंगे, मुकदमात का सामना करेंगे और मेरे ख्याल में यही बेहतर तरीका है ना। अब देखना, अब इस पर ज़्यादा बात कर लें या आप अलहदा से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।